रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। Hello everyone, this is Kashish Mittal signing in for Voice of Asians channel. There is no denying the fact that today's women have demolished all the passions created by men's world. Whether that they have not only proved themselves but have excelled, but have outperformed in each and every field, you name it. Whether that's a corporate world, education, sports, art, government offices, you name it, and they have nailed it. But at the same time, they have not given up, they have not renounced their basic traits, values of love, care, compassion, empathy, perseverance. आज की नारी ने अपने जो मूल गुण है, अपनी कोमलता, सौम्यता, अपनी शर्म, अपनी सेंसिटिविटी, अपनी फेमिनिटी, उसको छोड़ा नहीं है, ना ही उसको अपनी वीकनेस बनने दिया है, बल्कि उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर वो आगे बढ़ी हैं। तो इसी नारी शक्ति, इसी विमेनहुड, इसी अपार क्षमता को सलाम करते हुए, इस जज्बे को सलाम करते हुए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आज एक सीरीज, एक श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है वी द विमेन, विमेन ऑफ सब्सटेंस। इसमें मैं आपको हर बार एक ऐसी विमेन पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ who is the winner, who is highly successful and renowned, who is the achiever of her field. She has earned name, fame and brought laurels to her family. I am quite sure कि इस series के माध्यम से there will be millions of people who will get inspired and motivated, especially my women viewers who dream big and want to make big in their lives. तो इसी सीरीज, इसी श्रृंखला का आगाज करते हुए आज मैं आपको ऐसी हस्ती से मिलवाने वाली हूँ who is highly acclaimed, very successful, result oriented, excellent team player. She is well admired, well known, well groomed, well educated, well learned. She is highly intelligent, very dynamic, very result oriented, excellent team player. She is optimistic. I think I'll be falling short of adjectives to describe this person. All I can say is that there couldn't be a better person to start the series with. She is presently Chief Judicial Magistrate Ludhiana. She is General Secretary of the District Legal Aid Society. She has always been the front runner to help people who are deprived and poor with the free legal aid service. She was highly acclaimed and won a lot of accolades when, with the help of District Session Judge, she started the cleanliness drive of Sidhwa Canal. She is a very big social activist who was always actively and supported and motivated all the works, all the seminars related to social cause, whether that's a plantation drives or anything else. She is a firm believer and she's a dedicated and devoted person for the cause of bringing back the jail inmates and the juveniles back to the mainstream. In a way, she is trying her level best. She's aggressively working to curb the crime, especially the crime against women. So she is none other than Mrs. Gurpreet Dhillonji. Ma'am, with folded hands, I extend my warm welcome to you. It's a pleasure and honor for us to have you on our channel. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. She is none other than Dr. Gurpreet. Ma'am, with folded hands, I extend a warm welcome to you. It's a pleasure and delight and honor for us to have you on our channel. Thank you so much. And even I am really happy and grateful to be with you on this program. Thanks, ma'am. Ma'am, first of all, I would like to know about your journey from Mrs. Gurpreet to Gurpreet CGM, Dr. Gurpreet CGM. Your educational background, how you got into this, because this is the most coveted post for anyone. Actually, ma'am, I completed my graduation in commerce stream itself, and my parents always wanted to continue me with the commerce itself. Okay. They wanted me to join the teaching profession by completing my MCom and then of course by clearing the NET examination. But I always wanted to do something different to that of the what normal girls or the ladies were venturing into. So I always told my parents that I want to go for law. But they said that law is not a profession for the girls and we really don't want you to go for the law. And I still remember the day that there was an interview because I cleared my entrance exam for the MCom as well as for the law.
So the interview day was, it was my interview was fixed for both the streams on the single day and of course on the single time at 9 o'clock. So my mother when gave me the payment, she said you have to straightway go to the MCOM department and you have to deposit your fees. अपनी फीस कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाके आपने जमा करनी है, लॉ डिपार्टमेंट में नहीं जाना है. मुझे पता है कि तेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि तूने लॉ ही करनी है, बट क्योंकि लॉ का प्रोफेशन लड़कियों के लिए नहीं है एंड आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी इन द लॉ स्ट्रीम. तो उन्होंने मुझे कह के भेजा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और ये लो फीस और जाके लॉ डिपार्टमेंट में नहीं जमा करानी है, MCOM में जमा करानी है. बट आई स्टिल रिमेंबर दैट जब जैसे ही मैं घर से चली और मैं यूनिवर्सिटी तक, पंजाब यूनिवर्सिटी तक जाते जाते सोचती रही कि अब क्या किया जाए, जो मन की है वो सोचूं या जो अब घर से बोल के कहा गया है वो सोचूं. तो पहले MCOM डिपार्टमेंट आया तो मैं ना आगे चली गई. मैंने कहा चलो देखते हैं. वो जैसे ही लॉ डिपार्टमेंट में गई, ऑफ कोर्स काउंसलिंग शुरू हो गई थी, तो मैंने जाके लॉ डिपार्टमेंट में फ़ीस डिपॉजिट करवा दी. फ़ीस डिपॉजिट करवा के दोबारा MCOM डिपार्टमेंट में आ गई. तो MCOM में आवाज़ें लग रही थी बार बार कि आप आओ और अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाओ. सो आई इमीडिएटली गेव कॉल टू माई मदर. आई सेड कि मैंने फ़ीस जमा करवा दी है. देन शी सेड कि लॉ में तो नहीं करवाई. आई सेड कि देखो मेरी इच्छा है कि मैं लॉ ही करूँ. I really want to do something really different, not only for me, not only for my parents, but of course something really nice for the society. मैंने कुछ डिफरेंट करना है, सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ. और मुझे लगता है मैं MCOM में या ऐसे बैंक की जॉब में रह के मैं नहीं कर सकती. सो थोड़े टाइम के लिए उनको बड़ा फील भी हुआ होगा, बट आई रियली रिमेंबर उन्होंने फ़ोन रखा और कहते ठीक है. पर जब मैं घर गई तो मुझे बहुत सुनने को मिला कि मैंने कानून तेरे को बोला था MCOM में नहीं कराना, MCOM में ही करवानी है. सो दैट वाज द डे एक्चुअली जहाँ पे मुझे लगा कि पहली बार मैंने अपने मदर को डिसअपॉइंट किया. एंड जितनी देर 3 साल मैंने लॉ की, माय मदर वाज नॉट हैप्पी विद मी. तो 3 साल मुझे पूरी डांट पड़ती थी कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ चले हो, अब भुगतो. और मेरी रोज़ गॉड से प्रे होती थी कि आई एम डूइंग विद ऑल माई सिंसेरिटी. आई ऑलवेज यूज टू से कि भगवान आपको पता है कि मैंने ये क्यों चुना है, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ. अब आपने ही मेरी मदद करनी है. तो मेरे पेरेंट्स को ये साबित करना है कि जो मैंने लॉ लिया है उसके ऊपर एक दिन उनको प्राउड फील होगा. एंड जब मेरी LLB के बाद LLM में मेरी एडमिशन हुई, सो माई मदर वॉज हैप्पी. शी सेड कि अब मुझे संतुष्टि हुई है कि आप LLM में आ गए हो, अब दोबारा शायद आप लॉ डिपार्टमेंट में टीचिंग में जाओगे, यू वॉन्ट बी एन एडवोकेट. सो एक्चुअली इट इज़ रियली, मैं आज भी मुझे ऐसे लगता है जैसे वो दिन आज का बिल्कुल फ्रेश डे है मेरे लिए. आई स्टिल रिमेंबर द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग जो हुआ. तो MCOM हुई. MCOM के बाद चलो नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही. उसके बाद माई मदर सेड कि आई एम रियली हैप्पी कि चलो अब आपने MCOM नहीं की थी पर LLM कर ली है एंड नेट भी क्लियर हो गया आपका, तो अब आपको टीचिंग के ऑफर्स आ रहे हैं, सो यूल बी इन द टीचिंग. तो जब उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्टेड टीचिंग इन द लॉ डिपार्टमेंट. आई फर्स्ट taught for 1 year at Rayat and Bahra Law University. Then after that I was I joined Punjab University Law Department. I taught there as a law lecturer. So when I was teaching there, then at that time in 2005, December 2005 में vacancies आई PCS की. So my mother said कि I am happy that you are doing lectureship, तो आप PCS मेरे लिए दो. But I was happy actually ना in the teaching also, because मैंने टीचिंग के साथ ये नहीं था कि अपने आप को सिर्फ टीचिंग के साथ ही जोड़ा हुआ था, जो मेरा एक मैसेज भी है टू एवरी वीमेन एंड ऑफ कोर्स टू ऑल द ह्यूमन बीइंग कि जब भी आप एक किसी भी प्रोफेशन में जुड़ो, मे बी यू मे बी अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, you are in a bank, you are in any IAS services, police services, it's not that if you are attached to a job, तो आपने अपना जो दायरा है उसको खोल के चलना है. you know, whenever you get a chance, आपको आते जाते रास्ते में आते कहीं पे भी you come across any person, आपको कोई इंसान मिलता है तो आपको लगता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, so you must not procrastinate. आप उसको कभी पोस्टपोन मत करो, बिकॉज भगवान ने आपको देखो एक मौका दिया है जहाँ पे उसने आपको जरिया बनाया है किसी की हेल्प करने का. सो इफ़ यू गेट अ चांस यू मस्ट हेल्प दैट पर्सन आउट. तो उसी हिसाब से जब मैंने PCS का एग्ज़ाम अपने, ऑफ कोर्स मैं PCS में अपीयर हुई, PCS का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड. सो देन आई डिसाइडेड
कि मेरे को PCS नहीं करनी है, कि जुडिशरी में आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन द जुडिशियल पोस्ट, कि वो फाइल्स डिसाइड होना, दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनेशन, आई एम ड्रीमिंग फॉर समथिंग एल्स। तो देन आई डिसाइडेड कि आई थिंक आई शुड क्विट, कि मैं ये जॉब को छोड़ के आई शुड कम बैक टू माई टीचिंग डिपार्टमेंट, एंड विद द टीचिंग प्रोफेशन आई शुड कंटिन्यू विद सम सोशल सर्विस विद सम NGOs, बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग, जब मैं पढ़ा भी रही थी लॉ डिपार्टमेंट में, मैं उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी। कोई भी नीडी पर्सन, इट वाज मतलब फेमस था कि किसी ने भी पढ़ाई करनी है तो मेरे पास वो किसी भी टाइम आ सकता था। किसी को बुक्स की ज़रूरत है, किसी को फीस की ज़रूरत है, सो आई वाज अप्रोचेबल। किसी कॉमन मैन को मैं बड़ी अप्रोचेबल थी, सो इवन आई वाज फीलिंग गुड फॉर दैट। तो जुडिशरी में आके मुझे कुछ लगा कि मेरा सोसाइटल कट ऑफ हो गया है, जो मैं चाहती हूँ वो आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू डू दैट, सो आई डिसाइडेड दैट आई शुड रिज़ाइन। बट आई स्टिल रिमेंबर हमारे बॉस थे उस टाइम पे, सेशन जज हमारे थे, देन ही सेड कि गुरप्रीत यू हैव टू गो ए लॉन्ग वे। उन्होंने मुझे समझाया कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे भी सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है। जो सोशल सर्विस सिर्फ यही नहीं होती कि कोई आपके पास किसी को फीस दे दी, किसी को कुछ कर दिया, वो तो आप अभी भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट अप्रोचेबल, बट फाइलों के साथ, सिंसेरिटी के साथ, हार्ड वर्क के साथ और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इस जॉब में, जुडिशरी में आप जब केस डिसाइड करोगे तो वो सबसे बड़ी मतलब सोसाइटी को आपकी देन होगी। सो उन्होंने मुझे एज ए गार्डियन आप कह लो, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू हिम, उनकी बदौलत ही आज मैं जुडिशरी में कंटिन्यू कर रही हूँ। Wow. What a beautiful and inspiring journey she has. And she pushed beyond the barriers. Or I think her mom will be proud of her because she disobeyed for the right reason, I suppose. And I think it's a very inspiring story, and which proves that where there's a will, there's a way. Ma'am, what do you think is the best part about your job? आप क्या सबसे satisfying thing आपके लिए क्या है, आप जो बहुत आपकी जॉब के बारे में आप जो? जब मैंने जुडिशरी ज्वाइन की थी उस वक्त शायद मुझे इतना नहीं मालूम था कि वाकई दिस इज़ द बेस्ट जॉब। आज मैं ये कह सकती हूँ कि जुडिशरी लड़कियों के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। रीज़न बीइंग दिस जॉब इट नॉट ओनली प्रोवाइड यू द फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, आपको पैसा तो जॉब में देखो मिलता ही मिलता है, एक पावर है, एक पोजीशन है, और उससे भी जो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मौका मिलता है जहाँ पे आपने, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको सोसाइटी को एक बड़े ही अच्छे वे में रिटर्न बैक कर सकती हैं। एंड अबव ऑल जो आपके पेरेंट्स को खुशी मिलती है, जो आपके पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंड द जॉय, जो खुशी वो महसूस करते हैं, वो शायद कहीं पे हम नहीं दे सकते। और लेडीज़ का देखिए, अब बीइंग इन जुडिशरी, चलो कहते हैं ना पावर तो जॉब में ही है, मतलब या यू कैन से दैट पावर इज इन द पोस्ट, तो नो डाउट, पर उसके कारण, वो आज एक पोस्ट के कारण आज मेरे अंदर कोई डर नहीं है। मुझे अगर आज किसी इंसान की हेल्प करनी है तो मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कहीं पे जा रही हूँ, कोई इंजर्ड पड़ा है, मुझे 1 मिनट में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं उठाऊँ, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करूँगी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को करूँ, डॉक्टर साहब को करूँ, एंड आई कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू दैट पर्सन। बट अगर यही कॉमन मैन हो तो उसके दिमाग में हज़ारों सवाल आते हैं कि मैं उसको कैसे लेके जाऊँ, फिर पुलिस वालों के साथ बात करें ना करें। बीइंग अ फीमेल ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स कम टू योर माइंड, आपकी एक अपनी हिच होती है, फिर आपको लगता है कि आपकी कोई बात सुनेगा भी, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट ये हमें सब पता है कि सिस्टम में कुछ खामियां तो हैं जिसमें एक कॉमन मैन के लिए थोड़ी सी सुनवाई कम है ना। सो जब आप पोस्ट में होते हो तो आपकी जो है, चाहे आप ये कह लीजिए कि हमारा टाइम प्रीशियस है, वो ये सोचते हैं कि हमने कोर्ट जाना है, ऑफिस वर्क है, सो थोड़ी सी प्रायोरिटी, प्रिविलेज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए कॉमन मैन तो मिल ही जाती है। सो आई ट्राई, मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक जिन्होंने राम रहीम केस डिसाइड किया है, जज साहब हैं गुरदीप सिंह, बड़ा फेमस हुए हैं आजकल। उनकी भी मुझे, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बार वो कोर्ट जा रहे थे, सो कोर्ट जाते वक्त एक रास्ते में उन्होंने एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंटल कोई इंजर्ड पड़ा था। व्हाट ही डिड इज इमीडिएटली उन्होंने उस इंजर्ड को उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और उसको हॉस्पिटल ले गए, और उन्होंने उसको जो भी था ही कुड डू ही डिड इट। सो मुझे ये लगता है कि जो एक इंसान की इंसानियत है ना,
वो हमें ज़िंदा रखनी बहुत ज़रूरी है। और देखो सोसाइटी है, इसमें एक फीमेल को नो डाउट टुडे वी आर वेरी एम्पावर्ड, यू नो वी आर अवेलेबल विद बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, हमें कोई डर नहीं है, सिस्टम हमारे साथ है। बट स्टिल एक फीमेल ने अगर एक आम इंसान की किसी ऑड आवर्स में मदद करनी है तो हम वॉलंटियर नहीं हो सकते ना। सो बट इट्स कंट्रास्ट इन जुडिशरी और इन पुलिस सर्विसेज और इन IAS सर्विसेज, एनी सर्विसेज यू टेक। सो जब भी आप कोई ऐसी सर्विस ज्वाइन करते हो तो लड़कियां हैं वो अच्छे तरीके से एम्पावर्ड हो जाती हैं टू डू समथिंग रियली गुड फॉर द सोसाइटी। Well said, ma'am. It's beautiful. Again, a big inspiration for all the viewers. Ma'am, have you ever faced any difficulty being a woman while discharging your duty? I mean, do you think it's a limitation today? I mean, you are at such a high position in status. There couldn't be you can call any damn person to your court. I mean, in fact, I would love if my daughter becomes a judge. You know, that's the most coveted. But have you, as being a woman, have you ever faced any difficulty while discharging your duty? नो मैम, फ्रेंकली स्पीकिंग नॉट। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नॉट ओनली वाइल बीइंग इन PCS, ये नहीं है कि मैं जुडिशरी में आ गई तो मेरे को हर्डल महसूस हुई है। मुझे ये हर्डल कभी भी महसूस नहीं हुई, Beautiful. कभी भी नहीं हुई। इवन when I was studying, even at the time when I was teaching, और ऑफ कोर्स जब जुडिशरी ज्वाइन किया है तब तो बिल्कुल ही नहीं हुई। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर कर लेना चाहिए लेडीज़ के लिए, बिकॉज अर्ली राइजर थी मैं। तो व्हाट आई एग्जैक्टली रिमेंबर, इट वाज इन द मंथ ऑफ जनवरी, बहुत ज़्यादा फॉगिंग थी, बहुत ज़्यादा फॉग थी, डेंस्ड फॉग। सो जब मैं वॉक के लिए जा रही थी, इट वाज अराउंड 6:30, तो बहुत फॉग 6:30 और 7 के टाइम में। तो मैंने अभी जुडिशरी ज्वाइन ही की थी, रादर आई वाज इन ट्रेनिंग ले रही होंगी शायद। तो वहाँ पे मैंने सड़क के किनारे एक मिल्कमैन को गिरा हुआ देखा, वो बहुत ज़्यादा करा रहा था दर्द से, बहुत ज़्यादा, और उसका सारा जो दूध था वो सड़क पे गिरा हुआ था। सो ही वाज सेइंग कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी कोई मदद करो, कोई मैंने बचा लो, है ना, पंजाबी चैदा कही जाना सी। तो मैं जब वॉक करते मैंने उसको देखा, मैंने कहा बाबा जी की हो गया? वो कहते बेटा मैं ना स्कूटर ते जा रहे बाइक ते जांदा सी, मेरा बाइक स्लिप हो गया तो मैं डिग गया, तो मेरे तो हुण खड़ा ही नहीं होया जांदा, दुध सारा डिग गया, तो मैं बड़ी देर हो गई 15-20 मिनट लोगों नूं कड़े, बड़े लोग लंघ के गए, कोई रुक नहीं रहा। तो मैं ना सामने वाले दरवाजे, बिकॉज इट वॉज ए लोकेलिटी, इट वॉज नॉट रोड साइड, सो मैंने बेल लगाई, एक बेल लगाई, तो आंटी आए, मैंने कहा आंटी ऐसे करके बाहर प्रॉब्लम है। उसने दरवाज़ा साथ ही बंद कर लिया। देन फिर मैंने अगले दरवाजे की बेल, बट फिर मैंने सोचा यहाँ तो कुछ, ये तो इट्स समथिंग रियली बैड। सो मैं घर गई, घर जाके मैंने अपना व्हीकल उठाया और मम्मी को बोला कि मैं एक काम के लिए आया। शी सेड कि आप क्या करने जा रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा किसी को हेल्प की ज़रूरत है एंड आई हैव टू हेल्प हिम आउट। तो मम्मी कहते हैं कि ऐसे हेल्पर्स अभी 7 बजने वाले हैं एंड फॉग है, आपने ऑफिस भी जाना है। तो अभी मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटे की छुट्टी रख दूंगी, आई विल ट्राई टू जस्टिफाई, पर अगर मैंने इनकी हेल्प नहीं की ना तो मेरे को, तो मैं क्या मैडम, मतलब मम्मा मैं परेशान हो जाऊंगी। सो मैं इमीडिएटली उनके पास गई, तो मैंने डर भी लगे, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, अंदर फियर भी था कि फॉग का टाइम है, पता नहीं ये झूठ ही तो नहीं बोल रहा, पता नहीं ये तो नहीं है कि ऐसे ड्रामा ही कर रहा हूँ, टाइम इज। देन आई गैदर करेज कि चलो देखते हैं। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज, मैंने किया 100 नंबर डायल करके, और लास्ट कॉल रख लेते हैं ना कि अगर हुई ज़रूरत आई विल डू इट, घर पे बताया ही हुआ था। सो मैंने फिर ना उनको, किसी अंकल को रोका और मैंने कहा आप इसको ना मेरी गाड़ी में बिठा दो। तो मैंने उनको बिठा लिया। तो बिठा के जब मैं उनको घर लेके जा रही थी, आई स्टिल रिमेंबर, वो ना चंडीगढ़ में लेक के आगे उनका कोई विलेज था, वहाँ पे बड़ी फॉरेस्ट सा एरिया, मेरे को डर लगे कि यार इन्होंने बड़ा पंगा ले लिया, आज तो पक्का किडनैप हो जाएंगे, बहुत खतरनाक पंगा लिया है। बट चलो भगवान का नाम लेते लेते मैं सारे रास्ते पूछती, बाबा जी किद्दां हो बाबा जी, और मैं ये चेक करती रही हूँ उसको कि ये इसके चोट लगी भी हुई है, इसके चोट लगी हुई है। तो मैं करके ना उसको चलो पहुँचाते मचाते उसके गाँव ले गई। मेरे को अभी भी याद है जब मैं उसके गाँव उसको लेके मैंने उनको उतारा तो सारा पिंड इकट्ठा हो गया थे, लेडीज बच्चे। वो कहते इन्हों की होया, हेड, ही वाज द हेड ऑफ द फैमिली ना। तो वो उन्होंने, बाबा जी ने दस्या कि देखो मैं आधा घंटा सड़क ते पिया रहा, मैनू किसी ने नहीं चुक्या। कहते ये कुड़ी तो मैनू बिल्कुल उम्मीद नहीं सी कि एक लड़की आएगी तो मेरी हेल्प करेगी। कहते ये लैके मैनू चक के इत्थे ले आई। कहते मैं सारा रस्ता यही सोचता रहा भी कुड़ियां च इन्नी हिम्मत होंदी है, कुड़ियां नूं पढ़ाउण दा इन्ना फायदा हुंदा है, कुड़ियां जे गड्डी चलानी सीख जाण तां उन्हां दा इन्ना फायदा हुंदा है। कहते मैं सारे रस्ते ये सोचता रहा। तो मैं उन्होंने कहा, मैं बाबा जी मैं सारे रस्ते ये सोच ही रही कि
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਅਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਜੌਬ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਦੇ ਲੁਭਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਬੈੱਡ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। I think she deserves a big round of applause and applaud for the effort, ma'am. That's a true inspiration. इन्होंने एक example set किया कि lead by example, practice what you preach. I think there are millions of people who can emulate her style of working. और मुझे नहीं पता था कि judges ऐसे भी होते हैं. I mean, it's hats off to you, ma'am. I salute you for your spirit. Last but not the least, ma'am, अब मुझे पता चल रहा है कि आपकी inspiration आपकी mom भी है and who has impacted you most in your career. मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर गुरप्रीत ढिल्लों, उनका कोई पैशन हॉबी श्योरली होगा, तो समथिंग अबाउट मेरा देखो, जो मेरी हॉबी है वो तो ऑफ कोर्स गार्डनिंग एंड म्यूजिक है। तो आई लव टू स्पेंड माय टाइम कि जब मैं लिसनिंग ओनली, हाँ सिंगिंग तो आई एम नॉट अ गुड एट सिंगिंग, तो मेरे को है बाकी अपना छोटा सा जितना भी मैं प्लांट्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ कोई टाइम बिता सकूँ या कुछ कर सकूँ। सो उससे भी जो बड़ी बात है, मुझे ये लगता है कि एवरी डे मुझे ये सोच होती है कि आज कुछ नया करना है तो क्या करना है, और ये मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि हमें लाइफ में दो चीज़ें, एक तो जब आप सोने जाओ, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ स्लीप, तो 1 मिनट अपने आप को ज़रूर दो और उसमें आप ये सोचो कि यार आज कुछ किया, आज कुछ अच्छा किया, आज का दिन वेस्ट तो नहीं चला गया खाने पीने में, या ऐसे ही कुछ ना किया हो, कुछ अच्छा सोचा, या न्यूज़पेपर से कोई न्यूज़ अच्छी पढ़ी, या किसी के साथ कोई पॉजिटिव बात की है ना, या किसी को हंसाया, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, यार ज़िंदगी तो आज वेस्ट कर दी, आज तो कुछ भी नहीं किया। सो अब कल को जरूर कुछ करना है। सो फिर जब सुबह उठो, मॉर्निंग में उठते ही 2 मिनट अपने आप को दो कि मैं आज क्या कर सकती हूँ। वी शुड ट्राई कि आज मैं क्या कर सकती हूँ, आज का मेरा ये शेड्यूल है, उसमें मैं क्या पॉजिटिव अपनी उस दूँ कि रात को आज मैं सोऊँ तो मुझे ये ना लगे कि मैंने वेस्ट किया। सो ये 2 चीज़ें अगर हम अपना लें, सो वी कैन डू पिंच ऑफ, ठीक है, अपनी कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं जिससे हम खुद भी पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रखें। आई थिंक मेरा मन तो नहीं कर रहा बिकॉज आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, लेकिन मैं आज की इंटरव्यू को इसी नोट पे वाइंड अप करना चाहूँगी। स्मिता पाटिल जी का बहुत ही फेमस सॉन्ग था, उसके लिरिक्स से कि कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, विच इज़ वेरी एपरेंट फ्रॉम द मैम हु इज़ वेरी डेलिकेट, वेरी एलिगेंट, वेरी एल्यूरिंग, बट स्टिल शी इज़ truly a woman of substance. So viewers, I am 101% sure कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, और अगर आप वाकई इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इन योर सर्कल। और हमारे चैनल पर एक प्रथा है, वी फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग अ प्लांट टू आवर गेस्ट, which is a mark of positivity and growth. So I would like to invite our channel head and famous astrologer Sukhminder ji and my camera person Vandana to do the honors.
रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास।